الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا انعام بڑا ہے کہ ہر بار جب آپ وہ عمل کرتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے نا، درخت لگے وہ بھی جنت میں۔ آج ہم درخت تو بہت لگاتے ہیں لیکن دنیا میں لگاتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، گملے میں لگاتے ہیں، لیکن کیا ہی خوب ہو جب کہ ہم جنت میں درخت لگائیں، وہ بھی ایک چھوٹے سے عمل سے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگایا جاتا ہے۔ جنت کا پیڑ کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک پیڑ ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا، پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایسا پیڑ لگایا جاتا ہے جس کا سایہ 100 سال تک چلتا ہے، تو اگر کوئی دن میں 100 بار کہہ دے اس کے لیے کتنے درخت ہوں گے؟ اب میں آپ کو 4 کلمے ایسے بتاتی ہوں جو کہ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہر کلمے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ نے صرف 100 بار سبحان اللہ کہا تو 100 درخت، اگر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا تو آپ کے لیے جنت میں 100 درخت، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا تو آپ کے لیے جنت میں 100 درخت، اور اگر آپ نے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہا تو 100 درخت جنت میں پھر لگ جائیں گے۔ یعنی کہ 4 کلمے کی یہ تسبیح اگر ہم نے ایک پڑھ لی تو ہمارے لیے 400 درخت جنت میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہی خوب ہے! کل ملا کر 400 درخت صرف کچھ منٹوں میں، اور وہ بھی جنت میں آپ کے نام۔ کتنا سستا عمل ہے! آج ہم لوگ دنیا میں نا کوئی شاپنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چیز بھی اچھی مل جائے اور خرچ بھی زیادہ نہ ہو، سستا ڈھونڈتے نا، لیکن سستے کے ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چیز بھی اچھی ہو۔ تو کتنا اچھا عمل ہے، چھوٹا سا ہے اور اس کا نتیجہ کتنا بڑا ہے۔ ذکر کا مقصد دل کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ کبھی سخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! زیادہ تر آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کہ جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نرم دل ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سے تو ہمیں صاف پتہ یہی چلتا ہے کہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ کبھی سخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اب ہم دیکھیں گے کہ عمل کیسے کریں، روز کا وظیفہ کس طریقے سے کریں۔
हर रोज़ सुबह या शाम जब आपको वक्त मिले तो ये वजीफ़ा कर लें। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। वैसे तो हम नमाज में फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिसे तस्बीह फातिमा भी बोलते हैं। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वजीफा अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाया था जब वो थक जाती थी। एक वाक़या है ना कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थक जाती थी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके खाविंद थे उन्होंने बोला था कि अपने बाबा जान से कुछ खादिम ले आओ तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, काम थोड़ा कम रहेगा, तुम बहुत थक जाती हो। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमल बताया था उनको। इसी वजह से इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बताया था। अगर आप ये रोज़ करेंगे तो हर दिन 100 से ज़्यादा जन्नती दरख्त आपके नाम लिखे जाएंगे। सोचिए, अगर ये सिलसिला ज़िंदगी भर चला तो आपकी जन्नत कितनी बड़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब एक वाक़या सुनाती हूँ मैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत बहुत बड़ी है, उसमें पेड़ बहुत होंगे, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि वो पेड़ लगाता कौन है, कौन लगाता होगा वो पेड़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे के लिए दरख्त लगाओ। अल्लाह अकबर। यानी जब भी तुम जिक्र करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा रहे होते हैं। क्या ही खुश नसीबी है वो लम्हा जब फरिश्ते हमारे नाम का दरख्त जन्नत में लगा रहे हों। जिक्र में सच्चाई और ध्यान। अब हमें ये जिक्र तो करना ही है, लेकिन उसमें ये चीज़ों का ख्याल भी रखना है कि हमारी सारी तवज्जो कहाँ है, हमारा दिल कहाँ है। पता चला कि ज़बान से तो जिक्र हो रहा है लेकिन दिल कहीं और खोया है। जिक्र सिर्फ ज़बान का नहीं, दिल का भी होना चाहिए। ज़बान से तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिल भी शामिल होना चाहिए। अगर ज़ुबान जिक्र करे और दिल गाफिल हो तो असर आधा हो जाता है, लेकिन जब दिल भी शामिल हो जाए तो वो नूर बन जाता है जो कब्र में और आखिरत में चमकेगा। अभी तो हमें एहसास नहीं होगा, लेकिन कब्र में और आखिरत में नूर बनकर चमकेगा वो। जिक्र से ये आखिरत के तो फायदे हैं ही, लेकिन दुनिया के भी बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदे मैं जिक्र कर देती हूँ। सबसे पहले तो दिल को सुकून मिलता है। आजकल देखा ना, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान हो, ये एक बीमारी बन गई है, दिलों का सुकून उड़ गया है। छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, ज़्यादातर देखते हैं कि दिल को सुकून नहीं होता है। तो अल्लाह ताला के जिक्र से एक फ़ायदा ये दुनिया का है कि अल्लाह ताला के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, गम और बेचैनी दूर होती है। आजकल तो ज़्यादातर लोग सब गम में हैं, बेचैन हैं। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, तो ज़्यादातर इंसान गम में और बेचैनी में है। तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि बेचैनी और गम भी दूर होते हैं और ज़िक्र में बरकत होती है। ये भी आज का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि पहले बहुत कम इनकम होती थी लोगों की, लेकिन तब भी गुजारा अच्छे से होता था। आज बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गई है,
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गुजारा ही नहीं होता है। तो उनकी सबसे मेन वजह तो है हमारी ख्वाहिशात का बढ़ना। अब हम पहले ये था कि बस पेट भर जाए, खाना मिल जाए, दाल रोटी सब्जी। आज हम लोग देखते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जाना पेट में, भरना पेट ही है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मांगते हैं। तो एक ये भी वजह है। लेकिन एक वजह ये भी है कि हमारे माल में, रिस्क में बरकत उठ चुकी है। तो अल्लाह ताला के जिक्र से एक ये भी फायदा होता है कि बरकत होती है, रिस्क में बरकत हो जाती है। चौथी चीज है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आज क्या देखने को मिल रहा है कि बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, एक्सीडेंट, कत्लेआम, जिना, ये सब बरस रहा है ना। हम देखते हैं बीमारियां तो जैसे बारिश बरसती है उस तरीके से बरस रही है। कोई भी छोटा बड़ा बच्चा, जवान, बूढ़ा, पहले ज्यादातर देखते थे कि बूढ़े लोग बीमार होते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, गोरा काला, अमीर गरीब, जिसे देखो बीमार। जहां बात करो, जहां जिसकी खैरियत पूछ लो, बीमार बीमार, परेशान। तो ये परेशानियों और बीमारियों की बजाय अगर हम लोग अल्लाह ताला के जिक्र में लग जाएंगे तो रहमतें बरसेंगी। क्या होगा? अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी इंशाअल्लाह। सबसे आखिरी चीज और सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज है, मौत के वक्त ईमान पर खात्मा आसान हो जाएगा। अब दुनिया में हम जितने भी आखिरत के लिए अमल करते हैं, अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका देते हैं, ये जितने भी हम इस मकसद से करते हैं कि इनसे हम अल्लाह ताला राज़ी हो, आखिरत के लिए करते हैं। तो वो सब चीज़ें किस लिए करते हैं? ईमान पर ख़ात्मा हो। ईमान पर ख़ात्मा होगा तभी तो ये सब चीज़ें हमें आखिरत की मिलेंगी, अच्छाइयाँ। वरना अगर ईमान पर ख़ात्मा ही नहीं तो कोई नेकी काम की नहीं। मेन तो ईमान है ना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है मौत के वक्त ईमान का ख़ात्मा होना आसान हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की फिक्र में हम रोज़ पेड़ लगाते हैं, लेकिन जन्नत के पेड़ों को भूल जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ 10 मिनट भी जिक्र में लगाएं तो जन्नत में आपके लिए हज़ारों पेड़ लग सकते हैं। क़यामत के दिन जब लोग हिसाब में मशगूल होंगे तब अल्लाह ताला कहेंगे, ये मेरे बंदे के लगाए हुए पेड़ हैं, अब इनके साए में रहो और उनके फल खाओ। अल्लाह अकबर! क्या ही खुश नसीबी होगी। वो कौन सा आलम होगा जब सोचने में, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो जब वो वहाँ होंगे तब कितना अच्छा लगेगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने जिक्र करने वालों में शामिल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी मालूमात मिली हो, तो इसे सवाब की नियत से आगे भी शेयर कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।